that you need to understand. There are few things that you need to understand. Factor analysis needs scale data. Scale data in the sense that data should be ordinal continuous data. Which data? Ordinal continuous data. So all the variables which you are measuring on Likert scale or which you are measuring on rating, ranking and continuous measurements, that can be used for factor analysis, right? You have to understand factor analysis is possible and applicable most of the times in survey research, because you conduct a survey to understand the opinion of respondents for numerous variables at a time. आप सर्वे कब करते हो? जब बहुत सारे पैरामीटर्स पे आपको रिस्पोंडेंट्स के ओपिनियन को जानना है, तब आप सर्वे करते हो। और तो पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स मींस मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको कोविड-19 का परसेप्शन वाला सर्वे का आउटकम दिखाया था, दैट आउटकम वाज टॉकिंग अबाउट perception of individual towards COVID-19 vaccine in terms of their product price, place promotion, people oriented factors, right? जो पिछले टाइम मैंने आपको दिखाया था। So factor analysis will be helpful for you to reduce the higher number of variables, which has significant impact on particular thing in a small number of variables, right? So वो फैक्टर एनालिसिस आपको बहुत सारे डेटा को स्केल डाउन करने में काम आएगा। डेटा रिडक्शन टेक्निक, फैक्टर एनालिसिस इज इटसेल्फ अ डेटा रिडक्शन टेक्निक। तो ये बेसिक हमने देखा था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, सो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। मैंने आपको यूज समझाया था, डेफिनेशन, आई मीन कहाँ पे यूज होता है। इट्स अ डेटा रिडक्शन टेक्निक। जनरली अगर कोई 30-40 वेरिएबल एक चीज को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से मेजर कितने हो सकते हैं, ये दिखाया था। फिर मैंने आपको कुछ कंसिडरेशंस समझाए थे। व्हाट आर द कंसिडरेशंस दैट यू नीड टू टेक इनटू माइंड व्हेन यू यूज द फैक्टर एनालिसिस। लाइक इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट यूजिंग statistical programs like SPSS, SAS. It cannot be used for small number of data set. आप छोटे वेरिएबल्स पे फैक्टर एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते। It means like you have measured 5 variables from the respondents and you are trying to make 2 out of 5. That would not be a logical application. Though SPSS will give you output, right? SPSS will give you output, but this is not logical application of factor analysis. 5 फैक्टर में से कौन से 2 फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए आप सिंपल उसका वेटेज निकालो in terms of mean, right? Mean निकालो, standard deviation निकालो, उसका variance निकालो, and you will get to know that which of those 5 factors, which 2 of those 5 factors can be having higher impact on your dependent variable, right? So you need a larger data set. You cannot apply factor analysis on a smaller data set. तो ये हुआ था। फिर use I have practically also helped you to understand how do you run factor analysis and how do you read factor analysis, right? So let me again show the screen. थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ शेयर करनी है, तो बी पेशेंट नाउ। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। तो this is what, can you see the screen? Yes sir. Okay, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, and these all variables are like variables measuring the opinion of respondents in terms of COVID-19 vaccination, how they perceive. We wanted to understand perception of respondents towards COVID-19 vaccination. तो जब हमने इसका फैक्टर एनालिसिस रन किया तो हमको आउटकम क्या क्या मिला था? We have got this outcome. Logically speaking, these communalities helps us to understand what is the total variance explained by this particular variable. अब ये एक्सट्रैक्शन का जो, सॉरी, अरे वो डिलीट हो गया क्या? ये जो एक्सट्रैक्शन का जो वैल्यू है यहाँ पे, राइट? एक्सट्रैक्शन वैल्यू टॉक्स you about how much total variance of
द रिलेशन दैट यू आर प्रेडिक्टिंग, हमने क्या रिलेशन प्रेडिक्ट किया है, हमारा रिलेशन प्रेडिक्शन क्या है, what is the impact of perception on its decision to go for vaccination or not to go for vaccination, right? और ये perception मेजर करने वाले पूरे फैक्टर्स है। तो हम this communality's extraction value tells you about how much variance of total relationship among these two variables has been explained, right? ये एक variable कितना variance explain करता है, and for that now you have to understand what do you mean by variance. Variance is nothing but the difference between the observed value of this variable and its mean, its average of this particular variable. 500 लोगों को ये वेरिएबल पूछा है हमने फॉर एग्जांपल, तो 500 वेरिएबल को पूछने के बाद कितना मीन आया, उसका मीन कौन से इस पे निकाला था हमने, मीन हमने निकाला था 1 to 5 स्केल पे, रेटिंग जो किया है डेटा वेरिएबल के व्यू से, यहां से जो हमने रेटिंग दिया था उसको 1 to 5 वाला, उससे हमने मीन निकाला था, राइट? मैं एक बार फिर से आपको फैक्टर एनालिसिस की टेस्ट रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एक दो और टेबल चाहिए होंगे। बी पेशेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनलिटीज टॉक्स अबाउट। आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्या है पता है क्या? इन एग्जामिनेशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट हाउ डू यू इंटरप्रेट आउटकम ऑफ द फैक्टर एनालिसिस टेस्ट। अगर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होती तो आपको क्या दिया होता, आपको ये 3 टेबल या फिर एक या 2 टेबल इसमें से दिए होते एंड एक सिनेरियो दिया होता एंड आपको आउटकम में आंसर लिखना होता है कि ये टेबल को देख के आपको क्या समझ में आया। दैट कुड हैव बीन द सिनेरियो ऑफ योर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। अब एमसीक्यूज में भी वही हो सकता है, स्क्रीन पे आपको आउटकम दिखाया जाएगा इन 3-4 टेस्ट जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और उन 3-4 टेस्ट में से जो आउटकम दिखाया जाएगा वो आउटकम को इंटरप्रेट करके आपको सही आंसर ढूंढना है। तो सही आंसर कहाँ होगा, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट दो मुझे। हमको क्या क्या चाहिए, इनिशियल सॉल्यूशंस, डिटरमिनेंट्स। अब ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करते नहीं बैठता हूँ। हमने बोला है आइगन वैल्यू 1, आइगन वैल्यू इज नथिंग बट द again the amount of correlations that can be explained by that individual variables with dependent variables। कितना correlation explain कर सकता है, that is the eigen value, right? हमको चाहिए स्क्री प्लॉट। स्क्री प्लॉट को मैंने टिक करके रखा हुआ है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ओके, कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे बताया था यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी फैक्टर एनालिसिस टेस्ट इफ यू डू नॉट हैव एटलीस्ट फ्यू कोरिलेशन अमॉन्ग द वेरिएबल्स। ज्यादा से ज्यादा कोरिलेशन चाहिए तभी फैक्टर एनालिसिस लगा सकते हो। नॉन कोरिलेटेड वेरिएबल्स को आप फैक्टर एनालिसिस कर नहीं सकते हो, राइट? फाइन, सो डिस्क्रिप्टिव्स, कोएफिशिएंट्स। तो मैंने क्या किया, 30 वेरिएबल्स को टेस्ट में लगाया। अगर पिछले सेशन में थे आप तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? सो नाउ दिस बिग टेबल इज टॉकिंग अबाउट कोरिलेशंस, राइट? अब ये कोरिलेशन टेबल रीड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था बिफोर दैट। व्हाट इज कोरिलेशन टेस्ट, कितना रेंज होता है, कैसे रीड करते हैं, द कोरिलेशन ऑफ दिस वन वेरिएबल विद दिस। तो ये ऑलवेज रो टू कॉलम देखा जाता है। ये जो है ना 19 कोविड-19 वाला, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है, इसका इन सब वेरिएबल्स के साथ कितना कोरिलेशन होगा ये दिखाया हुआ है। अब वो फर्स्ट के साथ 0 100% बिकॉज सिमिलर वेरिएबल है, तो ये 1 1 1 1 ऐसा हमेशा आता रहेगा क्योंकि ये अपने खुद के साथ कोरिलेट कर रहा है। अगर कोई चीज किसी खुद के साथ कोरिलेट करती है तो 100% कोरिलेशन होना चाहिए, राइट? 100% है इसलिए 1 1 1 1 आ रहा है। बट लॉजिकली देखा जाए तो कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, उसका इसके साथ कितना कोरिलेशन है
देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, इसके साथ कितना कोरिलेशन है वो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये 1.21% कोरिलेशन है। सिग्निफिकेंस कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट बिकॉज हमको यहाँ पे कोरिलेशन नहीं चेक करना है, हमको यहाँ पे फैक्टर एनालिसिस चेक करना है। तो यहाँ पे क्या दिखा हमने, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, इसका मतलब डेटा जो यूज किया हमने फैक्टर एनालिसिस के लिए, दैट डेटा इज वैलिड। अनदर इज नाउ टॉकिंग अबाउट communalities, these individual variables explains this much of variances. These individual variables explains this much of variances in total, this much of variances in the dependent and independent relationship, right? कितना अफेक्ट करता है, तो एक एक वेरिएबल मिलके इतना अफेक्ट करता है, इसका इंडिविजुअल वेरिएंस है। नाउ we have told to factor SPSS that we need to identify the most effective factors, those who have eigen value above 1। क्या किया, जिसका आइगन वैल्यू अबव 1 है, जो हाईली कोरिलेटेड फैक्टर्स है उनको ही ले लो और आइडेंटिफाई करो कि उसके आइगन वैल्यू के बेस के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, उतने कंपोनेंट्स हमको निकाल के दो, उतने कंपोनेंट्स हमको निकाल के दो। तो एसपीएसएस ने क्या किया, आइगन वैल्यू के ऊपर उसने 9 कंपोनेंट्स निकाले। लास्ट टाइम हमने देखा था 9 कंपोनेंट्स आए थे। यहाँ पे आप देखो कम्युलेटिव्स, इनिशियल आइगन वैल्यूज, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इनिशियल आइगन वैल्यूज। मतलब सिंपल में देखा जाए तो कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, यहां तक उसने हमको दिया है, यहां तक हमको दिया है उसने आइगन वैल्यू 1 के अबव। जिसका आइगन वैल्यू अबव 1 है उतने कितने कंपोनेंट्स हैं, 9 कंपोनेंट्स है। एक्सट्रैक्शन, सम, स्क्वायर, लोडिंग, कितना लोडिंग है, इंडिविजुअल लोडिंग अपना अपना इस यहाँ पे दिया हुआ है, कितना अपना अपना फैक्टर्स का लोडिंग है। तो कंपोनेंट 1 में कंपोनेंट 1 का लोडिंग है 29%, कंपोनेंट 2 का लोडिंग है 9%, इनिशियली सिमिलरली कंपोनेंट 9 का लोडिंग है 2%। टोटल लोडिंग में से इतना फैक्टर एक एक कंपोनेंट लोड करता है, मतलब इफेक्ट करता है। कंपोनेंट कहाँ पे है, कंपोनेंट यहाँ पे है, ये मैंने आपको दिखाया था 9 कंपोनेंट्स, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू वाला सबसे इंपॉर्टेंट इन ग्रुप 1। तो आपको अगर 30 वेरिएबल में से, ये जो 30 वेरिएबल है उसमें से मोस्ट अफेक्टिंग 9 वेरिएबल डिसाइड करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हाईएस्ट वाला फर्स्ट, इसमें हाईएस्ट वाला सेकंड, इसमें हाईएस्ट वाला थर्ड। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द फैक्टर लोडिंग वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल, राइट। तो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा एक टेबल आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है आपको which of the variable from component 6 has the maximum impact on the डिपेंडेंट वेरिएबल, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करने को आना है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन कॉलम 6, इन कंपोनेंट 6 इज द हाईएस्ट इंपैक्टिंग फैक्टर, राइट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, राइट। तो ये हर एक कंपोनेंट को एक्चुअली देखा जाए तो कंपोनेंट 1 to 9 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो कंपोनेंट 1 to 9 इज डिसेंडिंग ऑर्डर, सब एक, ये इससे कम है, यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे भी ये कम्युलेटिव परसेंटेज है, तो ये असेंडिंग में आएगा। यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहला 29 है, फिर 9.5, फिर 6, ये सब कंपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जिसका हाईएस्ट वैल्यू है वो आप 1 2 3 4 6 7 9 के हिसाब से कंपोनेंट निकाल सकते हो, हाईएस्ट अफेक्टिंग फैक्टर। तो 9 फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, इसमें जिसका फर्स्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है वो पहला आएगा, इसमें जिसका हाईएस्ट वैल्यू वो दूसरा आएगा, इसमें तीसरा जिसका हाईएस्ट वैल्यू वो तीसरा आएगा। ऐसे आपके पास 9 वेरिएबल्स निकलेंगे आउट ऑफ ऑल 30 वेरिएबल्स बेस्ड ऑन देयर लोडिंग ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट द यूज? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, यस, राइट। एंड सी, यहां से आगे कोई कैलकुलेशंस नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे। क्यों? यहाँ के आगे कोई कैलकुलेशंस नहीं, क्यों? बिकॉज द वेरिएबल्स और द कंपोनेंट्स आफ्टर 10, द वेरिएबल्स आफ्टर कंपोनेंट नंबर 10 हैज लेस देन 1 आइगन वैल्यूज। तो उसके आइगन वैल्यूज कितना था? लेस देन 1 था, इसलिए इसको कैलकुलेट कर किया ही नहीं उसने, क्योंकि हमने बोला था कैलकुलेट अबव 1, जिसका आइगन वैल्यू अबव 1 आएगा। सिमिलरली व्हाट हैपेंड हियर,
नाउ इफ यू लुक आफ्टर दिस कम्युलेटिव परसेंटेज, कितना आता है यहाँ पे, ये कम्युलेटिव परसेंटेज, फर्स्ट कंपोनेंट 29% वेरिएंस एक्सप्लेन करता है ऑफ टोटल वेरिएंस बिटवीन दिस 30 वेरिएबल्स एंड चॉइस ऑफ गोइंग फॉर वैक्सीनेशन और नॉट गोइंग फॉर वैक्सीनेशन, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट ही 30% को प्रेडिक्ट कर रहा है, फिर ये 10 को, ये 6 6 5 4 3 2, ये 9 कंपोनेंट इज द हैविंग लीस्ट फैक्टर लोडिंग, राइट, लीस्ट फैक्टर लोडिंग। तो कम्युलेटिव अगर करते जाते हो आप इसका, तो till the 9th component you get 73.321%, 73.321% of variance explained of the dependency and independency relationship of your list of 30 dependent variable and one variable which has effect on your choice to go for vaccination। मतलब ये जो 10 कंपोनेंट है, वो 10 कंपोनेंट का 73.321% कैपेसिटी है कि आपके इंटेंशन को चेक किया जाए। समझ में आ रहा है? ये 10 कंपोनेंट मिला के, ये 9 कंपोनेंट मिला के 73% प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपके इंटेंशन को, whether you are going to take the vaccination or not going to take the vaccination। This is the application of, this is the interpretation parameter of this explained variance। कितना वेरिएंस एक्सप्लेन करता है? 73%। मतलब ये 10 पैरामीटर का स्टडी करके आप 73% तक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो बंदा वैक्सीनेशन के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। और ये 30 पैरामीटर जो आपने फैक्टर एनालिसिस में लगाए थे, these were the parameters measuring his perception। It means the 9 factors or 9 components which we have extracted out of 30 can predict 73% of the intention of individuals। समझ में आया सर? सर जितना 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 टाइप ऑफ डेटा है हमारे पास, जितना सीरियल तक, हाँ, उसके ऊपर क्या कुछ कंपोनेंट्स के कुछ मतलब डिटरमाइंस होते हैं कि फॉर द ईच एंड एवरी वैल्यूज हाउ वी हैव टू बी गेट इट? हाँ, तो यहाँ पे 73 तक आया है, राइट। हाँ सर। तो जो 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 बचा हुआ है, that has been explained by those variables which has less than one eigenvalue, right? The remaining amount of variance has been explained by all those variables which has less than one eigenvalue। मतलब इन लोगों ने भी कुछ एक्सप्लेन किया है ना, 9 के बाद जो भी कंपोनेंट्स है उनका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, राइट। हाँ सर। वो सब मिलके उन्होंने किया है। आपका क्वेश्चन क्या था? कैन यू कम अगेन? सर मतलब सर जो मतलब डेटा जो वैरी करते हैं सर, हम लोग तो पूरा का पूरा जितना 25-26 जितना तक हम लोग लिस्ट निकल सकते हैं इसका, तो सर वो Who is the host of the meeting? Can you just make me co-host again? I have disconnected because of this network issues. You might have observed that the electricity has gone. Harshita is host. Okay, thank you, Harshita. Yes. So we were talking about this factor analysis. Yes. Who was asking the question? क्वेश्चन किसने पूछा था? कोई चला गया। वो भी चला गया। क्या नाम था उसका? Devdeep. Okay. Has anyone understood his question? What was he asking?
मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया। यस ठीक है ना सर, ये चल रहा है क्लास। Yes. Hello. Hello guys. Sorry for interruption. कोई है क्या? अच्छे फ्लो में Yes, चल sir. रहा था, ये लाइट में Yes, से मार लगा है। चलो, क्या था वो क्वेश्चन, क्या था? सर वो देवदेव कुछ पूछ रहा था। देवदीप, are you there? क्या हो रहा था? He was asking actually a nice point. I also forgot. डिस्कनेक्ट हो गया ना, मैं पूरा इरिटेट हो गया। हेलो सर। यस देवदीप, बोलिए। हाँ सर। सर सर एम आई ऑडिबल सर? यस यस देवदीप, गो ऑन। यस थैंक यू सर। सर हम लोग जब मतलब पूरा का पूरा जब चार्ट देख रहे थे कि जितना तक 25 पॉइंट्स तक या 30 पॉइंट्स तक जितना भी हमारा क्यूमुलेटिव वेरिएंस, क्यूमुलेटिव वैल्यू या परसेंटेज ऑफ वेरिएंस निकले थे, तो सर क्या वो एक पॉइंट के ऊपर बेस करके हम लोग मतलब दूसरा तीसरा को कैलकुलेट करते हैं, या फॉर द सम ऑफ दैट गेटिंग थिंग्स, या इसको एजम्पशन करना पड़ता है दैट काइंड ऑफ वैल्यू? बहुत सारे इश्यूज है, ठीक है। आई डोंट वांट टू क्रिप ऑन दैट। ओके देवदीप, वन मोर टाइम, आई एम सॉरी, because you are Yes, sir. asking something logical and I am not getting you. I got you, but I want a more explanation on that so that I can give you the right answer to you. Yes, बोलो। यस सर। सर हम लोग जो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस टेबल का और परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव, ये वाला, दोनों जब ये हम, वाला, दिस हाँ वन। सर ये दोनों टेबल सर, ये दोनों कॉलम्स सर, हाँ हाँ हाँ। ये दोनों कॉलम में जब सर हम लोग मतलब टैली करते हैं, कोई वैल्यू आते हैं, तो वैल्यू क्या एक वैल्यू के ऊपर हम लोग बेस करके हम लोग मतलब दूसरे वैल्यू निकलते हैं, या फीडबैक के ऊपर जितना हम लोग रेस्पॉन्स पाते हैं उतने के ऊपर निकल सकते हैं? The perfect thing you are trying to predict is like, understand what we are saying. We are saying that we are putting 30 variables in the analysis and we want to find out most contributing variables, right? सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है वो ढूंढना है। तो हमने क्या किया, see this entire factor analysis actually doesn't go for the dependent list, it goes for the correlation of each other, right? ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ ये जो 30 वेरिएबल्स है उसका कोरिलेशन निकालता है, लाइक दिस, राइट? ये दिस फाइंड आउट द कोरिलेशन अमंग all those variables and based on this correlation values, ये जो फर्स्ट रो में वैल्यू दिख रहे हैं ना आपको, based on this correlation values it calculates which variable has the highest association with another variable. एक वेरिएबल का this understand for the first variable itself, COVID-19 vaccination is highly effective. ये जो वेरिएबल है इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसका उनके बाकी के वेरिएबल्स के बारे में जो ओपिनियन है उसके साथ कितना रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करता है कोरिलेशन निकाल के, एंड देन इट गिव्स यू द रैंकिंग, देन इट गिव्स रैंकिंग टू दोज वेरिएबल्स, राइट? इसको देखो रैंकिंग, देन इट गिव्स द वेटेज, फैक्टर वेटेज कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, एंड उसको फिर रैंकिंग में लगा के
यहाँ पे उसका वो हाईएस्ट निकालता है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता है उसको, राइट। तो सबसे पहले फैक्टर एनालिसिस क्या करता है? फैक्टर एनालिसिस फाइंड्स आउट द कोरिलेशन बिटवीन द एंटर्ड वेरिएबल्स, जो 30 वेरिएबल हमने एंटर किए उसका वो कोरिलेशन फाइंड आउट करता है। फिर उस कोरिलेशन का वेटेज निकालता है, इंडिविजुअल वेटेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, एंड उस वेटेज को रैंक में लगाता है, एंड देन इट गिव्स यू द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ टॉप फिगर्स। टॉप फिगर्स कैसे निकलती है? बेस्ड ऑन द कोरिलेशन वैल्यू, कोरिलेशन के आइगन वैल्यू निकाली जाती है, राइट। तो कोरिलेशन वैल्यू के ऊपर वो टॉप के कुछ जितने हमको चाहिए, लाइक हमने बोला है जिसका आइगन वैल्यू 1 के ऊपर है उसके उतना ले लो। अगर हम बोलते हैं कि 0.5 के ऊपर का ले लो, तो 9 फैक्टर की जगह हमको शायद से 9 की जगह 10 कंपोनेंट या 12 कंपोनेंट मिल गए होते, राइट। हमने बोला है कि आइगन वैल्यू 1 रखो, बिकॉज इज एज अ थंब रूल ऑफ रिसर्च इट इज सेड दैट कि when you apply factor analysis for component principal component analysis method, that is PCA, principal component analysis method, thumb rule says that कि आइगन वैल्यू 1 के ऊपर जितना वेरिएंस एक्सप्लेन करने का कैपेसिटीज है वो अच्छा माना जाता है, उसके ऊपर का ले लो। सो वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर assumption here and trying to find out what is the impact of topmost contributing factors. So topmost contributing factors are those whose has the higher correlation value as per the eigen values. So it is the weightage of all those components towards particular dependent variable, calculated based on the correlations of this variable. So आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वैल्यू को प्रिडिक्ट करके हम इसका ये वैल्यू निकाला, कम्युलेटिव वैल्यू या फिर परसेंटेज वैरिएंस एक्सप्लेन, ये कौन से वैल्यू को पकड़ के निकाला? ये हमने वैरिएंस निकाला SPSS के इस डेटा सेट में इंडिविजुअल वाइज। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वेरिएबल है, इसको मीन की जगह से कितना वेरिएंस आ सकता है सभी रिस्पॉन्सेस के लिए, तो वो वेरिएंस निकाला और वेरिएंसेस के बेसिस के ऊपर कोरिलेशन निकाला, और कोरिलेशन के बेसिस के ऊपर हमने उसका वेटेज निकाला कि इसका कितना कोरिलेशन वेटेज है इंडिविजुअल ऑफ दिस 9 कंपोनेंट्स, और फिर टोटल कंपोनेंट का वेटेज निकाला, right? Theoretically talking, this is very simple. फिर भी मैं I'm trying to put it to the most common words. समझ में आया? कहाँ से आया? Yes sir. So it is basically a correlation value. In foundation, what is it? It's a correlation value. इसलिए मैंने आपको सबसे पहले correlation समझाया था। Correlation क्या होता है? The amount of change occurred into y variable because of the amount of change into x variable. So दोनों वेरिएबल का मोमेंट टेस्ट करने का, मोमेंटम टेस्ट करने का एक कोरिलेशन टेस्ट होती है। एक वेरिएबल में चेंज किया तो दूसरे में कितना चेंज होगा। फॉर एग्जांपल चेंज इनटू द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, 1 यूनिट चेंज इनटू द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन MBA क्लास, 2 द कैपेसिटी ऑफ MBA स्टूडेंट्स टू गेट प्लेस्ड। इसमें क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए। ट्रेनिंग कम करोगे तो प्लेसमेंट का कैपेसिटी कम होगा, राइट। ट्रेनिंग ज्यादा करोगे तो प्लेसमेंट की कैपेसिटी ज्यादा होगा। सो सिमिलरली फैक्टर एनालिसिस आल्सो कैलकुलेट्स वेरिएबल, देन इट कैलकुलेट्स इट्स आइगन वैल्यू व्हिच इज लाइक कैपेसिटी ऑफ अगेन एक्सप्लेनिंग द वेरिएंस बिटवीन कोरिलेशन, राइट। घुमा फिरा के पूरा स्टैटिस्टिक्स दो ही चीज पे आता है गाइस, रिमेंबर, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 चीजें अगर आपको समझ में आया तो स्टैटिस्टिक्स का लॉजिक, सब भी जितने भी टेस्ट है, वो रिग्रेशन हो, कोरिलेशन हो, कोई भी टेस्ट हो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की, वो आ जाके आती है मीन पे और वेरिएंस पे। जनरली हम चाहे टेस्ट कोई भी करें, हमारा सर्वे करने का लॉजिक क्या होता है? सर्वे करने का हमारा लॉजिक यही होता है कि हमने जो अज्यूम किया हुआ वैल्यू है, वो वैल्यू और प्रैक्टिकल में लोग जो सोच रहे हैं वो वैल्यू में कितना डिफरेंस है, for all the variables that we are putting into the survey. ये देखना ही हमारा लॉजिक है, राइट। तो हमको हर टाइम चेक तो करना है कि डिफरेंस बिटवीन assumed value and expected value, वही हाइपोथेसिस रहता है। sometimes we want to check the difference between, sometimes we want to check the change happened because of. so some relationships are co-relationships, some are dependent relationships. मतलब कोई रिलेशनशिप पैरेलल चलती है, कोई वन वे चलता है, एक का इम्पैक्ट बहुत सारों पे होता है, वो डिपेंडेंट रिलेशनशिप बन जाती है, राइट।
तो लॉजिकली देखा जाए तो सब आ जाके कहाँ पे आता है, मीन एंड वेरिएंस. मीन इज व्हाट यू हैव कंडक्टेड सर्वे फॉर लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रॉम 60 पीपल, और आपको लगता है कि ये वेरिएबल का मीन होना चाहिए, लाइक 5 पॉइंट स्केल पे आपने लिया है 1 2 3 4 5, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक, आपको लगता है कि इसका मीन 4 होना चाहिए, तो ये आपका अज्यूम्ड मीन है. तो एक्चुअली ऑब्जर्व्ड मीन कितना आया, 3.5 आया, राइट. तो आपने क्या किया, इट मीन्स वट एवर यू आर अज्यूमिंग इज नॉट देयर इन द पॉपुलेशन. इतना ही सिंपल लॉजिक है. और बट ये लॉजिक इतना सिंपल है, बट इसके बाद आप बोलोगे फिर इतने सारे टेस्ट डेवलप करने का क्या जरूरत है. इट इज जस्ट बिकॉज द नेचर ऑफ डेटा, द टाइप ऑफ डेटा, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी वांट टू ड्रॉ inferences for varies a lot. It varies a lot according to the types of research, objective of research, kind of population, kind of sampling. तो हर एक के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशंस को अज्यूम करके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेवलप हुई है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, statistics is all about understanding what is your assumption about that population and what is your observation about that population. इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ही पूरा स्टैटिस्टिक्स बना है. समझ में आया? यस सर. अब ये स्क्री प्लॉट को देखो. दिस स्क्री प्लॉट टॉक्स अबाउट द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल योर 30 वेरिएबल्स. ये क्या दिखा रहा है आपको, आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल योर 30 वेरिएबल्स. कितने लगाए थे हमने वेरिएबल, 35 वेरिएबल्स लगाए थे, राइट. हमने क्या बोला, फैक्टर एनालिसिस लगाने के टाइम पे हमने कंडीशन क्या दिया था, वी वांट टू हैव द कंपोनेंट्स फॉर दोस द आइगन वैल्यू इज मोर देन 1. अब आप पूछोगे आइगन वैल्यू बोल रहे हो, वो है क्या. एक्चुअली आइगन वैल्यू का कैलकुलेशन इज टोटली इंजीनियरिंग टर्म. किसी ने अगर किया होगा, इट्स अ काइंड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन एंड डायमेंशन, बहुत डीप में है. मुझे भी उस लेवल तक पता नहीं है, राइट. मुझे इतना पता है कि आइगन वैल्यू इज द वैल्यू विच मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, not a variable, measures the capacity of that component to explain the variance between the observed values, right. So आइगन वैल्यू हमने क्या बोला था, 1 के ऊपर जिसका आइगन वैल्यू है उतने ही कंपोनेंट निकालो. अगर हम वो कंडीशन नहीं लगाते तो वो हमको कितने कंपोनेंट्स देता, 35 कंपोनेंट्स देता वो, राइट. कंपोनेंट्स मींस द ग्रुपिंग ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ द वेरिएबल्स based on the weightage that they have on that relationship. तो कितने तरीके का ग्रुपिंग क्रिएट किया जा सकता है among your given variables which has the highest impact. मतलब 35 वेरिएबल्स को कितनी बार आप अरेंज कर सकते हो, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगा टू प्रेडिक्ट योर डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंटेंशन को प्रेडिक्ट करने के लिए आपने जो 35 वेरिएबल्स मेजर किया है, उन सब वेरिएबल्स को आप कितने अरेंजमेंट्स में लगा सकते हो. तो बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू वी कैन पुट इट इनटू 9 अरेंजमेंट. तो 1 देखो, इस कॉलम में 1 कहाँ पे है, इस एक्सिस में, y एक्सिस में 1 कहाँ है, हियर समवेयर. कैन यू सी दिस कर्सर देख रहे हो? यस सर. यहीं पे कहीं पे 1 है. अगर हम यहाँ चले जाते हैं तो दिस इज वेयर, राइट. तो अब इसके ऊपर के पॉइंट्स मेजर करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. इसका मतलब we will see scree plot is just used to understand and logically select the number of components that you have. ये आपको आइगन वैल्यू का एक ओपन विजुअल देता है which helps you to understand what is the kind of eigen values you had for all the components, right. So scree plot में क्या लिखा है ये पढ़ लो. scree test in statistics, इसका यूज क्या है. A scree plot shows that the eigenvalues on the y-axis and the number of factors on the x-axis. कितने फैक्टर्स डाले थे आपने टेस्ट में, वो दिखाता है x-axis पे, and it shows the eigenvalues on y-axis, and out of which you will understand कि कौन से 9 components लेने चाहिए, कितने components लेने चाहिए. मतलब सिंपल, मैं अगर आपको ये टेबल ना भी दूं, कौन सा, ये टेबल ना भी दूं, सॉरी ये नहीं, this if I do not give this particular table,
Still also you will get to know that how many components can be made, कितने components बनाया जा सकता है. Based on this graph only you can predict. So in examination you may also have a question like this graph would be shown to you, few numbers of variables and eigenvalues would be given. Condition would be given to you is that consider the eigenvalue of 0.5, eigenvalue more than 0.5, and tell the number of components or number of factors that has the highest impact on the given relationship. ऐसा कुछ पूछा जा सकता है. तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि 0.5 के ऊपर 0.5 कहाँ है, यही पे यहाँ कहीं आएगा, राइट. उसके ऊपर कितने फैक्टर्स आते हैं. So all those factors are having maximum contribution in predicting the variance between your independent and dependent variable. समझ में आ रहा है. ये अकेला ग्राफ भी देके आपको पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम कितने फैक्टर्स आप निकाल सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. राइट. तो ये टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, राइट. So this is the way you can understand this particular factor analysis test. It always displays a downward curve because 0 से शुरू होता है, downward curve display करता है. The point where the slope, because see why it displays downward curve, because correlations, it arranges the values of correlations in the descending order, right. ये correlation values को descending order में रखता है and then इसका variance explain करने के capacity के ऊपर इसकी eigen value निकलता है, and based on that eigen value it arranges the all factors and components. So it shows the downward curve because it is a descending order. It puts in, ये सब टेबल में आपने देखा होगा, कहीं पे भी आपको ascending order में values नहीं मिलेंगी, right, except this communality. Actually communalities is not also ascending order, that is only the representation of values. Oh, sorry, इसको क्या हो गया, अभी लटक गया. ये जो आपका टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन का जो टेबल था उसमें आपने देखा है सभी के सभी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट. दिस ऑल वैल्यूज आर इनटू असेंडिंग ऑर्डर. सो इट इज a downturn curve, right. Just read it again. The point where the slope of the curve is clearly leveling off the elbow of eigenvalue, elbow made by eigenvalue. elbow कहाँ बनेगा, हमने यहाँ देखा था कि elbow कहाँ बनता है, 1 के वहां बनता है. एंड इट डिपेंड्स कि elbow कहाँ बनेगा, मतलब वो जो राइट एंगल है वो कहाँ बनेगा, यही पे कहीं बनेगा elbow 1 वाली वैल्यू के. अगर आपको आइगन वैल्यू एग्जाम में 0.5 दी है तो वो वहां बनेगा, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करनी है, राइट. इंडिकेट्स द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट शुड बी जनरेटेड बाय द एनालिसिस. कितने फैक्टर्स जनरेट कर सकता है आपका एनालिसिस, वो स्क्री टेस्ट आपको आइडेंटिफाई करा देगा. सो व्हाट इज स्क्री टेस्ट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्री टेस्ट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. स्क्री टेस्ट शोज द आइगन वैल्यूज ऑन x and y axis. It always displays downward curve. It helps you to identify what is the number of factors can be generated. Number of factors can be extracted. Instead of generated, you say it extracted among the higher and larger number of variables that you are putting into the test. Clear? Yes, sir. अब statistically समझना के लिए बहुत कुछ है इसमें. It is too much deep. Can you believe? एक पूरा सेमेस्टर हम एक टेस्ट ही पढ़ सकते हैं. मुझे भी पढ़ना पड़ेगा उतना ही आपको पढ़ाने के लिए उस टेस्ट के बारे में, बट एक पूरे सेमेस्टर तक हम एक पूरा टेस्ट पढ़ सकते हैं. इसके अलग अलग कंडीशंस, इसके अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इसके वर्जन. नॉट नेसेसरली एवरी टेस्ट इज एप्लीकेबल टू दैट स्पेसिफिक डेटा ओनली. इसके अलग वर्जन भी हो सकते हैं. यू मे हैव नॉन पैरामीट्रिक फैक्टर एनालिसिस, नॉन पैरामीट्रिक ANOVA, मतलब स्केल डेटा नहीं है फिर भी आप फैक्टर एनालिसिस कर सकते हो. उसके अलग सॉफ्टवेयर से, उसके अलग टेस्ट से, राइट. वहां पे वेरिएबल्स कैसे यूज करना है, कौन से वेरिएबल को क्या ट्रीट करना है, दैट ऑल थिंग्स आर देयर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस. One is exploratory factor analysis, another is confirmatory factor analysis.
You just keep reading it. I will explain you both of those things. So what do you mean by like how those types differs and how do you read the communalities table? Just read it, this particular slide. What is the eigenvalue? मैंने मीनिंग में लिखने का कोशिश किया है, आपको कम से कम समझ में आए कि क्या है स्टैटिस्टिकल मीनिंग उसका, right? The eigenvalue is a measure of how much the variance of observed variable a factor explains, right? How much the variance of observed variable a factor explains. आपने जो वेरिएबल उसमें से निकाला है उसमें से मतलब कंपोनेंट के टेबल से, आपके पास एक टेबल रहता है कंपोनेंट मैट्रिक्स, राइट? इस टेबल में से, और अगर आप फर्स्ट वाले वेरिएबल में आपने फर्स्ट वाले कंपोनेंट में से आइगन वैल्यू का मतलब क्या है? फर्स्ट वाले कंपोनेंट में से आपने अगर हायर वैल्यू वाला एक फैक्टर निकाला तो वो फैक्टर इंडिविजुअली कितना प्रेडिक्ट कर सकता है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू, राइट? आसपास ही है, सबका मीनिंग आसपास ही है. इट इज वेरी क्लोज अंडरस्टैंडिंग, तो कंफ्यूज नहीं होने का. फैक्टर लोडिंग टेल्स यू अबाउट इंडिविजुअल इम्पैक्ट. आइगन वैल्यू टेल्स यू अबाउट द कैपेसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल वेरिएबल टू एक्सप्लेन द वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो लोडिंग का मतलब होता है कितना इंपैक्ट कर रहा है. आइगन वैल्यू का मतलब होता है कि वो कितना एक्सप्लेन करता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल. तो इंपैक्ट मतलब डिपेंडेंट रिलेशनशिप, लेटेंट रिलेशनशिप. थोड़ा सा हेवी तो जाएगा, शुरुआत से अगर पढ़ते तो शायद समझ में आ रहा है कि बट बेसिक समझ में आ रहा है क्यों यूज किया जाता है. कैन यू यूज दिस फैक्टर एनालिसिस इन योर एसआईपी नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? कितने लोग हैं यहाँ पे? 20-21 लोग हैं. क्या लगता है आपको? सब मार्केटिंग रिसर्च में हो बेटा, समझ लो. ये फैक्टर एनालिसिस कहाँ यूज होता है पता है तुमको? मार्केटिंग एनालिसिस में. इट हेल्प्स यू इन ऑल ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स माइंड, बिहेवियर, ओपिनियन, सेटिस्फैक्शन, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस. सेगमेंटेशन में काम में आएगा. In STP, if you want to decide how much importance your consumers are giving to all the factors of your product, so it will be helpful for you to decide your product attributes. It will be helpful for you to decide product value. Value addition कैसे करोगे प्रोडक्ट में? कौन सा एट्रीब्यूट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे? What your customers gives highest preference to which variable while they purchase your product. तो इन सब चीजों में जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे तब आपको ये फैक्टर एनालिसिस यूजफुल रहेगा, राइट? ऐसे ही हम टाइम पास के लिए नहीं समझ रहे इसको. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन, लेट्स सपोज अ रेस्टोरेंट, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन like fast food restaurant, and you want to offer few pizzas, burgers to your customers in your locality. So you may conduct a survey and identify while purchasing the burger or while purchasing that particular pizza, what are the parameters that has been given highest importance by the consumers. तो आप सर्वे करो, पूरे वेरिएबल्स के लिए उनका रिस्पॉन्स लो 1 to 5 स्केल पे, उसको आप फैक्टर एनालिसिस में लगाओ. टेक अ 50 वेरिएबल्स, 50 वेरिएबल निकालो. पिज्जा और बर्गर के प्रेफरेंस के लिए 50 से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, राइट? So how you implement that factor analysis in your practical marketing research life is something which is very interesting and applicable. खुद करके देखो. You all are in SIPs, right? You all are in SIPs and you are doing various marketing. आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं SIP कहाँ करूँ, कौन सा statistics test यूज करूँ, रिसर्च कैसे करूँ. एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स सपोज यू आर इनटू अ क्रेडिट कार्ड सेल्स कंपनी और इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स कंपनी. फाइंड आउट which are the highest important factors that consumers gives importance while they purchase policy, while they purchase car policy, while they purchase credit card. और फिर list out the variables, prepare a questionnaire on 5-point scale. ऑर्डिनल स्केल ही चाहिए, इतना याद रखो. इसके assumption याद रखोगे फैक्टर एनालिसिस तो आपको पता चल जाएगा. सो रिसर्च कैसे करनी है, फिर आप
रन करो फैक्टर एनालिसिस एंड देन यू विल गेट टू नो दैट कि बाबा जो मैंने अज्यूम किए हैं 50 फैक्टर्स, उस 50 में से टॉप के 5 कौन से हैं और वो 5 मिलके कितना परसेंट के एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे प्रॉपर रिलेशन को। जैसे आपने यहाँ देखा कि इस परसेप्शन के चक्कर में अगर आप टोटल वैरायस एक्सप्लेन वाला टेबल देखते हो तो ये 9 कंपोनेंट या 9 फैक्टर, 9 कंपोनेंट में से आप जो असेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, वो 9 कंपोनेंट कितना परसेंट एक्सप्लेन करते हैं, तो वो 73% ही एक्सप्लेन करते हैं। वैसे आपको पता चल जाएगा जो टॉप के 10 फैक्टर्स आप निकालोगे अमॉन्ग्स ऑल 50 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड और पॉलिसी और फॉर दैट मैटर योर डीमैट अकाउंट, जो भी है, आप किसी भी तरीके से सोचो कि फैक्टर एनालिसिस कहाँ यूज में आ सकता है, तो यू विल गेट टू नो दैट 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंपोनेंट्स, जो भी नंबर आएगा आपका बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेस्ट यू इंप्लीमेंट थ्रू स्पेसेस, कितना परसेंट एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट इज योर फाइंडिंग, दैट इज योर जेन्युइन फाइंडिंग, ओरिजिनल रिसर्च होगा वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप बोलते हो ना समर इंटर्नशिप में रिसर्च कहाँ है, तो मार्केटिंग वालों को तो there is huge scope to implement this particular thing, and I doubt, and my genuine question to you all is like, why don't you do this particular thing seriously? Why don't you like take it to the most important thing of your academics? आपको क्यों शॉर्टकट ढूंढने हैं, like making projects of non-research things, making projects of whatever you are doing in the company. Whatever you are doing in the company is not research. How do you find out a problem in your job profile in a company, and how do you solve that problem using this such kind of tools and techniques? That is, see, you are in a sales department. Don't you want to understand what is important factor that you need to consider as a salesperson for that particular product? अगर वो पता चल जाए आपको तो आप उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करोगे, उस फीचर को हाईलाइट करोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में ज्यादा लिटरेट करोगे आपके कस्टमर्स को। So the application of factor analysis is very deep, vast, and in a multifunction of your marketing research and in your marketing job also. तो ये मत बोलो कि सर, हाँ सर ये जो आप जो ये बता रहे हैं टोटल वेरिएंस, ये इस बेसिस पे हम लोग समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, वही ये तो शो कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। वही तो बोल रहा हूँ मैं, फैक्टर एनालिसिस करके आप समर इंटर्नशिप आराम से बना सकते हो, एंड इट विल बी अ वर्थ वाइल इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हो, राइट? ये रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर से एक बार सुनो मैंने क्या बोला लास्ट 10 मिनट, राइट? श्योर सर। How many of you think that now you can use factor analysis somewhere in your SIPs? 20 लोग हैं क्लास में, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? किसको लगता है कि यूज हो सकता है? करो ना करो, दैट इज योर चॉइस। आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोगों को एप्लीकेशन समझ में आया है। किसी को नहीं समझ में आया? वेरी गुड, इतना चिल्ला चोट करके कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं इतना चिल्ला के, राइट? चलो ठीक है। आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे हाथ, इफ यू रेज योर हैंड हियर देन यू नीड टू यूज इट इन अ SIP? वैसे भी ऑल दोज हु आर माय मेंटीज फॉर SIP, I don't know, are you there or no? Maybe you people are not under me for SIP. F1 का कोई बैच है, उनको तो मैं प्रॉपर रिसर्च करने के लिए ही बोलने वाला हूँ। So the point is that I want you all also to use those tests in your SIP and impress the evaluators. ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मुझे देखना था कि कितने लोगों को कौन सा वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 50 वेरिएबल का लिस्ट निकाला बेस्ड ऑन द इंटरनेट यूज, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन। कस्टमर को मैंने पूछा आपको क्या कौन से वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और उसके ऊपर सर्वे बनाया, एंड आउट ऑफ दैट आई हैव फाउंड आउट ये 50 में से ये 5 वेरिएबल है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये 5 मिल के इतना परसेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं उस डिसीजन को। तो ये सब लॉजिक है, राइट? यू कैन यूज दैट लॉजिक। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। Still I am surprised that nobody is raising hand and nobody thinks that कि मैं यूज कर सकता हूँ। सर क्योंकि अभी ये पूरी तरह से मतलब एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक बार रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो हो ही जाएगा।
लॉजिक क्या है ये तो समझ में चाहिए, समझ में आना चाहिए ना आपको। फैक्टर एनालिसिस क्या है, कहाँ यूज किया जा सकता है, मार्केटिंग में इसके स्कोप क्या है। पढ़ने से नहीं होता है रे, एक दो बार करके देखना पड़ता है, राइट। अगर आप एसआईपी में करोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कोई भी दो चीजें अगर आप एसआईपी में करते हो, ये क्या दो चीज। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल अबाउट फैक्टर एनालिसिस. There are two types of factor analysis which we need to understand. One is exploratory factor analysis, one is confirmatory factor analysis, right? In confirmatory factor analysis, what do? We find out the confirm number of factors, right? We find out the certain number of factors. So in confirmatory factor analysis, it is used in a marketing research to confirm the effects of correlation. मतलब ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप चेक करता है, हाउ मच इट इज डिपेंडेंट, एंड इट एक्सप्लेन्स ओनली. ये एक्सप्लोरेटरी रिलेशन क्या करता है? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर द अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेरिएबल एवरेज. ये अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये अगर देखना है तो आप एक्सप्लोरेटरी करते हो, राइट. कितना अफेक्ट करते हैं और कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, कौन सबसे कम अफेक्ट करता है, वो देखना है तो आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं. एक्चुअली टेस्ट सिमिलर रहता है, लॉजिक एंड द एक्सटेंशन टू द टेस्ट. कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में आपने क्या किया, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में क्या किया, ये जो हमने किया वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, राइट. हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स निकल सकते हैं, कितने कंपोनेंट्स के कितने कंपोनेंट्स मिलके टोटल मिला के कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर सकते हैं. और जो कंफर्मेटरी है उसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जिसका फैक्टर लोडिंग का वेटेज 50% अबोव है या 0.5% अबोव है उसको ही आप वैल्यू में ले लो. सो यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इन कंफर्मेटरी एनालिसिस, इन कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, राइट. सो डिटेल में अगर आपको देखना है तो अगेन मुझे लगता है ज्यादा टॉर्चर करने में कोई मतलब नहीं है आप लोगों को. सिंपल में याद रखो, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर द अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वेरिएबल्स. सिर्फ अगर आपको देखना है इफेक्ट कितना, इफेक्ट कौन से वेरिएबल करते हैं, कौन से नहीं करते. यहाँ पे क्या क्या हमने, राइट. ये अगर पहले 4 कॉलम देखते हो आप इस टेबल के, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन ये टेबल के, ये पहले 4 टेबल कॉलम अगर देखते हो तो ये व्हाट आर दिस टेलिंग यू, व्हाट आर दिस वेरिएबल्स टेलिंग यू. दिस वेरिएबल्स आर टेलिंग यू कि इन सबका कोरिलेशन कितना है, कैसा है, वो सब दिखा रहा है, राइट. कंफर्मेटरी करना है तो हम बोलेंगे सिर्फ 4 या 5 फैक्टर्स निकाल के दो जिसका हाईएस्ट कंफर्मेशन, हाईएस्ट रेटिंग है. और वो रेटिंग कौन सा होना चाहिए, जो हमारे लेवल पे हमको डिसाइड करना है. मगर अगर कोई वेरिएबल 50% अबोव रिलेट करता है तो उसको टेस्ट में लो तो ही दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, क्योंकि 50 से नीचे वाले का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो हमको कंपोनेंट में मत दिखाओ वो वेरिएबल, फैक्टर उसको बाहर मत निकालो. तो अगर हम कंफर्म वैल्यू के साथ जाते हैं, कंफर्म वैल्यू रिलेशन स्ट्रेंथ, कंफर्म वैल्यू के स्ट्रेंथ के ऊपर जाते हैं तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, राइट. Yes, sir. Just read it one more time. Confirmatory factor analysis, on the other hand, is used as tool in market research and analysis to confirm or to reconfirm the effects and correlations of the existing set of predetermined factors for variables that affects these factors. मतलब जो हमको एक्सप्लोरेटरी आउटकम देगा उसमें से ही अगर हमको वो सिलेक्टेड फैक्टर्स चाहिए बेस्ड ऑन देयर वेटेज तो हम वही कमांड देंगे. अब वो एसपीएसएस में कमांड दे सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए भी, बट वो सब ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठूंगा ना तो फैक्टर एनालिसिस खत्म नहीं होगा, पहली चीज. और दूसरा चीज, बेसिक में काम करना पड़ेगा. आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू डाउनलोड द ट्रायल वर्जन ऑफ एसपीएसएस. अनफॉर्चुनेटली नोबडी डिड दैट. अगर वो किया होता तो आप खुद कुछ चीजें समझ जाते थे कि ये डेटा आता कहाँ से है, इसको इंसर्ट कैसे करना है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, ये सब चीजें आप समझ जाते थे, राइट. तो वो करना बहुत जरूरी था. जितना समझा है उतना समझ में आया है, आपको लगता है आप यूज कर सकते हो एसआईपी में.
सर थोड़ा बहुत आया, लाइक और एक बार देखना पड़ेगा, लाइक देखना पड़ेगा और एक बार। Which are the things that you did not understood? क्या कौन सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आया? सर लाइक समझी हूँ बट क्लियर नहीं है, मतलब अगर मैं करने जाऊँ ना तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो करके देखना ही पड़ेगा ना, इसके लिए आपको SPSS ट्रायल वर्जन डाउनलोड भी करना पड़ेगा, isn't it? ओके सर, ओके। एग्जैक्टली सर, एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रखो, थोड़ा सा गूगल करो, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, राइट? अभी बुक्स तो नहीं है, बुक्स तो नहीं है हमारे पास, नो सर, नहीं सर। नो सर। तो गूगल ही करना पड़ेगा, इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, यूज द यूट्यूब एंड यूज गूगल। सर ऐसे कुछ डेटा मिल जाएंगे सर? क्या बोले? ऐसा कुछ डेटा मिल जाएंगे जैसे हम लोग इसको निकल सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं ऐसे? ये तो मैंने दिखाया हुआ है आपको, सत्या, डू यू रिमेम्बर कि मैंने दिखाया था आपको कैसे बनाना है, SPSS का फाइल अपलोड कैसे करनी है? और एक काम करो ना, आपको अगर मैंने नहीं भी दिखाया है तो मैंने डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, सर्वे कैसे करते हैं, गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, उसका यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, मैंने PGDM में क्लास ली थी वो। सर वो तो सर अगले क्लास में ही समझ गए थे सर, आपने दिखाया था सर पूरा। क्वेश्चन क्या है हाँ आपका? सर, मतलब ऐसे मतलब अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में है। सर आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा वो लिंक शेयर कर सकते हैं। विच वन? वो ये जो डेटा जहाँ से कलेक्ट करना है, ये कैसे बनाने हैं ये तो ये। हमने गूगल, नहीं नहीं, लिंक से शेयर नहीं करूंगा मैं, आप जो यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है ना मैंने, वहां पे अपलोड करके रखा हुआ है PGDM का सेशन, वो डेटा कहाँ से आया, आप अगर स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ये सर। आप अगर इस डेटा की बात कर रहे हो तो ये डेटा कहाँ से आया, उसके पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ है। ये हमने जनरेट किया था सर्वे से। सर्वे कैसे किया? गूगल फॉर्म से। गूगल फॉर्म से कैसे क्लिक किया? क्वेश्चनर बना के। क्वेश्चनर कैसे बनाया? वेरिएबल का लिस्ट निकाल के, राइट? ये सर। ये दिया हुआ है, थोड़ा सा अभी आपको देखना पड़ेगा जाके यूट्यूब पे, 2-3 वीडियोस है, मेरा क्लास ही देख लो, सीक्वेंस में पता चल जाएगा, राइट? तो PGDM के क्लास ओके में सर। मैंने करवाया है इसका बैकग्राउंड, आपके क्लास में भी 1-2 डिवीजन, 1-2 क्लास हुए हैं मेरे उसके ऊपर, बट अभी वो सब आपको स्टडी करने के बाद पता चलेगा। दिस इज ओनली वन टेस्ट, दिस इज ओनली वन टेस्ट विच यू कैन वेरी इजीली यूज इन योर SIP। और एक इफेक्टिव रिसर्च होता है गाइस, समझ लो, आपके SIP का वैल्यू कैसे बढ़ाना है, राइट? कुछ ऐसा टेस्ट लगाओगे, कुछ नया करके दिखाओगे, तभी वैल्यू बढ़ेगा ना SIP का। या फिर आप परसेंटेज निकाल के लाओगे, सर इतने लोगों ने बोला यस, उतने लोगों ने बोला नो, तो इतना परसेंटेज डेटा हमारा ऐसा हुआ, उतने परसेंटेज का डेटा हमारा ये हुआ। कौन, मतलब हु विल आस्क यू एंड कंसिडर यू एज अ गुड स्टूडेंट इफ यू गो विद द परसेंटेज ग्राफ्स? क्या लगता है आपको? नहीं परसेंटेज सर, वैसा वाला करेंगे तो वो प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा। एक्चुअली वो वर्थ रिसर्च नहीं होगा, इसका वैल्यू भी कुछ नहीं है, राइट? यस सर। वेरी बेसिक थिंग, वो वैल्यूएबल रिलेशन नहीं होगा उसका। और आपको इसका ये मतलब नहीं है कि देन यू हैव अ रीजनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो प्रूव ही नहीं होगा आपका SIP से। तो इस तरीके से करो। ये फैक्टर एनालिसिस का टेस्ट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम जब डिस्कस करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट सम मोर टेस्ट कॉल्ड, लाइक मैंने 2 चीजें समझाया आज तक आपको, रिग्रेशन समझाया है मैंने, और आपको सॉरी कोरिलेशन समझाया है मैंने आपको, और मैंने समझाया है आपको फैक्टर एनालिसिस। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो कॉन्जॉइंट एनालिसिस होता है। कॉन्जॉइंट एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर परसेप्चुअल मैपिंग, राइट? परसेप्चुअल मैपिंग करते हैं, कॉन्जॉइंट एनालिसिस करते हैं। 2-3 और चीजें समझाऊंगा मैं आपको, सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए रुके। ओके सर। सर हाइपोथेसिस भी तो कर सकते हैं ना? फैक्टर एनालिसिस इज वन ऑफ द थिंग बाय व्हिच यू कैन टेस्ट हाइपोथेसिस आल्सो। कैसे टेस्ट ओके कर सर। सकते हो? कैसे टेस्ट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आपने 50 वेरिएबल का लिस्ट निकाला, राइट? और यू थिंक दैट द वेरिएबल्स रिलेटेड टू द प्राइस आर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स, राइट? तो आप हाइपोथेसिस में रख दो। Hypothesis would be like price related factors are the most important factors when it comes to the selection of customers for particular car, policy, credit card, जो भी है,
आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए, और फैक्टर एनालिसिस करके देखो, अगर प्राइस के रिलेटेड हाईएस्ट वेटेज आ गया तो आपका हाइपोथेसिस प्रूव है, अगर नहीं आया तो नहीं है। Okay, sir. Okay. Right, so it can be Yes. used for hypothesis testing also. That is called as उसको एक वर्ड है, एक्चुअली फैक्टर एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, बट इट Okay, कैन sir. बी यूज्ड फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग आल्सो। तो एक बार करके देखोगे ना तो पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर टेस्ट रिजल्ट कैसे आते हैं। सर ओके, एनी क्वेश्चन? यस, बोलो। यस सर। सर अगर मान लीजिए सर, अगर कोई कंपनी, कोई कार कंपनी ये फैक्टर एनालिसिस और कोरिलेशन करके अपना रिसर्च करती है, और क्या वो इस बेसिस पर रिसर्च करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे जा सकती है कि नेक्स्ट ईयर मेरा कार इतना अगर आगे बढ़ेगा या फिर बिके या फिर लॉस में नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, बिकॉज अंडरस्टैंड, दिस फैक्टर एनालिसिस डजंट टेल यू अबाउट prediction, right? It doesn't tell you about prediction. It's not a prediction tool. Factor analysis is a data reduction tool. किसी चीज में, फॉर एग्जांपल, आपको कार बनाने के टाइम पे आउट ऑफ 100 और 500 वेरिएबल्स कौन से सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल से किसको कितना वेटेज देना चाहिए, वो फैक्टर एनालिसिस आपको बता सकता है। बट नेक्स्ट ईयर कितना कार बिकेगा, इसके लिए फैक्टर एनालिसिस आपको हेल्प नहीं कर सकता है, राइट? Okay. वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स which has significant impact on behavior of your consumers, or the factors which has been given higher importance by your consumers while they select the car. मतलब ये टेक्निक इसीलिए है कि बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी एक चीज पे अगर इंपैक्ट करते हैं तो बहुत सारों में से इंपॉर्टेंस कौन सा कितना है वो देखने के लिए फैक्टर है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल, आपने एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया, फैक्टर एनालिसिस कैन नॉट टेल यू वेदर यू विल गेट प्लेस्ड और विल नॉट गेट प्लेस्ड। फैक्टर Okay. एनालिसिस विल टेल यू which factors would be very important for your placements among 50, which factors will be very important to achieve highest satisfaction of students among again 40-50 factors. तो और आपने कौन से फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया while you have taken admission in my institute, वो बताएगा फैक्टर एनालिसिस आपको। आप प्लेस हो गए या वो नहीं हो गया, नहीं हो गया, वो नहीं बताएगा। बिकॉज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन टेक्निक, इट्स अ डिस्क्रिप्शन टेक्निक। समझे? प्रिडिक्शन के Okay. लिए क्या है? Yes, sir. प्रिडिक्शन के लिए क्या है? रिग्रेशन। द बेस्ट प्रिडिक्शन टेक्निक इज द रिग्रेशन, राइट? तो रिग्रेशन के Yes, अलग sir. अलग टाइप्स है, फिर एक लीनियर है, मल्टीपल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, स्टेप वाइज रिग्रेशन है, उसके अलग अलग वर्जन है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग यू कैन प्रिडिक्ट। सो द प्रिडिक्शन फैक्टर एनालिसिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन टेक्निक। समझे? Okay, sir. Yes, sir. So it's only will be helpful for you to reduce the number of larger variables। 50-60-100 वेरिएबल में से 5 या 10 कौन से है जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ढूंढने के लिए आपको फैक्टर एनालिसिस काम में आएगा। फॉर एग्जांपल, सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय योर इंडिविजुअल क्लाइंट इज डिपेंडेंट ऑन 100 वेरिएबल्स, राइट? तो आप वो 100 के ऊपर उसको क्वेश्चन पूछोगे कि उसको कितना इंपॉर्टेंस देता है, और उस पे से आप 100 में से टॉप 10 निकाल सकते हो। दैट इज फैक्टर एनालिसिस। Okay, sir. Clear? Any question? No, sir. Okay. So go for this particular. फिर भी मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। If you want to implement factor analysis in your SIP, go and watch those 2 basic videos. डेटा कहाँ से आया, सर्वे कहाँ से किया, गूगल फॉर्म कैसे बनाया, एंड वो कहाँ से आपने निकाला। थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है, क्योंकि देखो मैं रिपीट भी करूंगा तो फिर 2-4 लोग ही आएंगे, राइट? अगर 200 लोग हैं और मुझे रिपीट पढ़ाने को बोला जाता है तो आई विल डेफिनेटली पुट दैट एफर्ट, बट वो है ही नहीं है, तो आई थिंक इट्स नॉट ऑफ दैट वैल्यू। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे देख लो, खत्म करो, राइट? सो शुड वी स्टॉप? हेलो, कैन वी स्टॉप हियर? But your voice is not audible. Okay, can we stop here now?
Hello, am I audible? I was saying that today we will stop here, and I will see you in the next class. Thank you so much. Thank you for waiting for me, and Thank you, sir. bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Am I the host now? For the co-host. Okay. I am just waiting for